Assalamu alaikum and welcome to the Network Security course. We are currently going through the topic of Introduction to Cryptography, and the purpose of covering this is that before we go into the further details, perhaps the application, perhaps at looking at the algorithms in a little bit more detail, we're giving a broad coverage to the topic of cryptography so that you can understand the key concepts. This is really critical so that when we move on onto the further chapters, we have a broader understanding and we are able to appreciate the subject much better. Now, in this module, which is Introduction to Cryptography, we have covered the main areas which are symmetric algorithms, then we covered asymmetric algorithms, and then we covered message digest or hashing functions. And then we started to enter the area of public key infrastructure, PKI. We talked about certificates, which is digital certificates. We talked about certificate authorities. We talked about the structure of a certificate. And we talked about what types of services the public key infrastructure provides. Let's just take a peek and review some of the key concepts that we have covered about PKI, digital certificates, and certificate authorities. Now, what is a digital signature? A digital signature, just to refresh your memory, is a hash value that has been encrypted with the sender's private key. The act of signing means encrypting the message's hash value with a private key. From our earlier example, if Ahmed wants to ensure that the message he sends to Bilal is not modified and he wants him to be sure it came only from him, he can digitally sign the message. This means that a one-way hashing function would be run on the message and then Ahmed would encrypt that hash value with his private key. ये जो है digital signature, इसका एक हम diagrammatic view जो है वो देख लेते हैं कि sending और receiving side के ऊपर digital signature को किस तरीके से implement किया जाता है. सेंडिंग साइड पे मैसेज को लिया जाता है, उसके बाद उसका एक हैश वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. जब हैश कैलकुलेट करते हैं तो वो कोई भी हैशिंग एल्गोरिथम हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इट कुड बी MD2, MD4, MD5 और SHA और वन ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ SHA. उसके बाद जब आप हैश कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप जो सेंडर की प्राइवेट की है उसके साथ उसको इनक्रिप्ट करते हैं. ओरिजिनल मैसेज के साथ ये जो इनक्रिप्टेड हैश है या इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट है उसको आप अटैच कर देते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है. ये मैसेज भेज दिया जाता है टू द सेंडर, फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. जब रिसीवर इसको रिसीव करता है मैसेज को, तो वो भी ओरिजिनल मैसेज जो कि अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको यहाँ पे मिल रहा है डायग्राम में, उसका वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है. उसको भी ABC वैल्यू निकलता है उसका हैश का, और फिर वो क्या करता है कि जो उसको रिसीव हुआ होता है इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू फ्रॉम द सेंडर, उसको वो डिक्रिप्ट करता है विद द पब्लिक की ऑफ द सेंडर, और उसको वो वापस ABC वैल्यू मिल जाता है. अब वो क्या करेगा, वो दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, जो उसने हैश खुद कैलकुलेट किया है और जो हैश भेजा गया था उसको from the sender side, and he's able to determine that क्योंकि hash value same है इसलिए मैसेज को चेंज नहीं किया गया, मैसेज की इंटेग्रिटी कायम है. तो इस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर इज टेकिंग अ हैश ऑफ द मैसेज एंड encrypting it with the private key of the sender. ये सिंपल सा फंक्शन है. आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा PKI की कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं. तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है? PKI provides authentication, confidentiality, non-repudiation, and integrity of the messages exchanged. PKI is a hybrid system of symmetric and asymmetric key algorithms and methods. PKI जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और PKI क्या, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है PKI की? PKI की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर ट्रस्ट सर्विसेज जो हैं, ट्रस्टेड सर्विसेज जो हैं, वो उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है.
वो सर्विसेज क्या होती हैं वो हम थोड़ी देर में क्विकली रिव्यू करेंगे. PKI में the infrastructure assumes that the receiver's identity can be positively ensured through certificates and that an asymmetric algorithm will automatically carry out the process of key exchange. तो इधर हम जो ऑथेंटिकेशन है उसके लिए आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम की एक्सचेंज में देख रहे हैं कि PKI में जो है एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है उसका क्या रोल है. हमने एक एग्जांपल देखा था कि डेव एंड केविन ट्रस्ट ईच अदर इनडायरेक्टली because both of them trust the certificate authority. So when the CA or certificate authority signs the certificate, it binds the individual's identity to the public key, and the certificate authority takes liability for the authenticity of that individual. It is this trusted third party, the certificate authority, that allows people who have never met to authenticate to each other and to communicate in a secure method. तो PKI के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर भी है, उसके अंदर सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है. फिर हमने ये देखा था कि एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी होती है, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज एक्चुअली द प्लेस जहाँ पे जो सर्टिफिकेट की फॉर्मेशन है या सर्टिफिकेट को बनाने का जो स्टेप्स हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं. नॉर्मली द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वुड बी अ डेस्क और एन ऑफिस. पीपल वुड गो अप ओवर देयर, they would show their ID, give their information, and then that information is verified or request certificate authority को भेजी जाती है. Certificate authority can be a server as well. The CA can be a server. So a request is sent to the CA कि ये इस person की identity है, or it could be information which is given, for example, the employee number, your role, your designation, and other personal information. For example, your date of birth and your driving license number. वो इंफॉर्मेशन जो है कंबाइन करके सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाती है. सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है, वो उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके इट बाइंड्स इट विद दैट पर्सन्स पब्लिक की, एंड देन द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइंस दिस विद इट्स प्राइवेट की. तो वहाँ पे जो है एक जो सर्टिफिकेट है वो बन जाता है फॉर एन इंडिविजुअल, एंड देन दैट डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी शेयर्ड and it can also be placed on the directory of the organization, and that person can also share that digital certificate with other people in the organization. और हमने ये देखा कि ट्रस्ट जो है वो इस तरीके से establish होता है. Two people may never have met in the organization, but if both of them have registered with the registration authority RA, and hence subsequently with the certificate authority, if they have a digital signature, so then they can talk to each other, they can trust each other as well. PKI जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है. PKI supplies the following security services: confidentiality, access control, integrity, authentication and non-repudiation. तो हमने देखा था कि हम जब डिजिटल सर्टिफिकेट को सिर्फ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एक हैश ले रहे हैं, वहाँ से इंटेग्रिटी आ रही है. उसके बाद हम साइन कर रहे हैं उस हैश को with the private key of the sender. तो जब हम प्राइवेट की के साथ साइन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन फंक्शन भी हमें मिल रहा है और नॉन रिपुडिएशन भी मिल रहा है. अगर आप मैसेज को एनक्रिप्ट भी कर दें तो आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विस भी मिल जाती है. एंड ऑफ कोर्स in the PKI environment we also get the service of access control, because there are different types of systems in the IT infrastructure and we need to restrict which person will have access to which systems and up to which privilege level. So these are the services provided by PKI, which is authentication, non-repudiation, integrity, confidentiality and access control. तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें PKI से मिलते हैं. सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से किन स्टेप्स के थ्रू यूज़र रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करती है. इसका एग्जांपल हमने देखा था. जॉन जो है वो पहले स्टेप में रिक्वेस्ट करता है डायन्स पब्लिक की
फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टरी। वहाँ पे जो है उसका एक्चुअली डिजिटल सर्टिफिकेट जो है उसके थ्रू जॉन को डायन की पब्लिक की मिलती है। उसके बाद जॉन क्या करता है, ही मेक्स अ सेशन की, क्योंकि जॉन ने डायन के साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो एक सेशन की को बनाता है जो कि उन मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन उसको सिक्योरली भेजने के लिए टू डायन ही इनक्रिप्ट्स दैट सेशन की विद डायन्स पब्लिक की, जो कि उसने अभी अभी डायरेक्टरी से डिजिटल सर्टिफिकेट जो डाउनलोड किया था डायन का, विच वॉज सर्टिफाइड बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उसको वहां से मिलता है। जब डायन के पास ये मैसेज आता है जो डायन की पब्लिक की के साथ इंक्रिप्टेड है, तो डायन कैन ओनली डू वन फंक्शन, शी कैन डीक्रिप्ट दैट मैसेज विद हर प्राइवेट की, जिसका मतलब ये है कि डायन के अलावा उस मैसेज को कोई नहीं खोल सकता, एंड एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। डायन उस मैसेज को डिक्रिप्ट करती है, उसको सेशन की भी मिल जाती है, और बाय द वे जॉन अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भी भेजता है टू डायन ताकि डायन को जॉन की पब्लिक की भी मिल जाए। और डायन क्या करती है, उसको क्योंकि जॉन का डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट शी वांट्स टू चेक कि ये वाकई जो है करेक्ट है कि नहीं, तो शी वैलिडेट्स जॉन्स पब्लिक की फ्रॉम द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। और वहाँ उसके बाद अब दोनों के पास, जॉन और डायन के पास, एक दूसरे की पब्लिक की आ गई हुई है और वो डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू मिली है, एंड नाउ दे हैव शेयर्ड अ सेशन की विद ईच अदर एज वेल। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पब्लिक की को शेयर करने का जो तरीका है वो यही है कि डिजिटल सर्टिफिकेट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पब्लिक की ऑफ द इंडिविजुअल is binded with the personal information of that individual, and it is signed with the private key of the certificate authority itself, which validates that this certificate is coming from nowhere else than the certificate authority. So now let's take a quick look at certificates. One of the most important pieces of a PKI is its digital certificate. A certificate is the mechanism used to associate a public key with a collection of components in a manner that is sufficient to uniquely identify the claimed owner. The standard for how the certificate authority creates the certificate is X.509, which dictates the different fields used in the certificate and the valid values that can populate those fields. तो हमने ये बात की थी कि इंटरऑपरेबिलिटी के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आइजो स्टैंडर्ड X.509 जो है उसको फॉलो किया जाता है, एंड देन ऑल ऑफ द इंडस्ट्री नोज व्हाट फॉर्मेट टू फॉलो व्हेन दे आर creating an application which uses digital certificates. In digital certificates में fields क्या होती हैं? Just to refresh our memory, let's take a quick look. Structure of a certificate जो है उसमें version number, serial number, signature, which is the algorithm ID used to sign the certificate, the issuer, which is the name of the certificate issuer, validity, the subject, which is the name of the owner of the certificate, subject public key info, which is the public key of the owner, the issuer unique ID, which is the ID of the issuing certificate authority, the subject unique ID, which is the ID and personal information of the subject, and extensions, which are for future use. ये सारी जो information है वो certificate में डाली जाती है, and as you can see there is sufficient information within the certificate to identify कि ये किसको belong करती है. Now we will go and start a new topic for today, which is key management. तो key management क्या है और क्यों ज़रूरी है? Cryptography can be used as a security mechanism to provide confidentiality, integrity, and authentication, but not if the keys are compromised in any way. The keys can be captured, modified, corrupted, or disclosed to unauthorized individuals. Cryptography is based on a trust model. Individuals must trust each other to protect their own keys, trust the administrator who is maintaining the keys, and trust a server
that holds, maintains and distributes the keys. तो क्रिप्टोग्राफी जो है उसका तमाम का तमाम जो बेसिस है उसमें हमें सर्विसेज तो मिल जाती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड लॉट्स ऑफ अदर सर्विसेज, डिपेंडिंग कि आप क्रिप्टोग्राफी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. हाउएवर, बात यह है कि जो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है उसमें एक पब्लिक की है विच कैन बी पुट ऑन ए डायरेक्टरी सर्वर, it can be distributed, it can be put on a portal, it could be put on a web page. But what about the private key? I am supposed to maintain my private key and make sure that it is kept secret. अगर उस की को सीक्रेट ना रखा जाए तो फिर क्या फ़ायदा इस पूरी एक्सरसाइज का? Because once you compromise the private key, तो you have let go of the security, the so-called security. जो भी हम सर्विसेज को अचीव करना चाह रहे हैं वो उस प्राइवेट की के साथ एसोसिएटेड है. अटैकर को प्राइवेट की मिल जाएगी, वो आपके सारे मैसेजेस को डिक्रिप्ट करके देख सकता है. तो की मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़्यादा डिटेल जो है आज हम लेक्चर में और ज़्यादा देखते हैं. सो की मैनेजमेंट, मैनी एडमिनिस्ट्रेटर्स नो दैट की मैनेजमेंट कॉजेज वन ऑफ द बिगेस्ट हेडेक्स इन क्रिप्टोग्राफिक इम्प्लीमेंटेशन. देयर इज मोर टू की मेंटेनेंस than using them to encrypt messages. The keys must be distributed securely to the right entities and updated continuously. They must also be protected as they are being transmitted and while they are being stored on each workstation and server. The keys must be generated, destroyed and recovered properly. तो जो keys हैं उनको मैनेज करने का एक कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है. की को जनरेट किया जाता है, उसके बाद की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट मस्ट बी डन सिक्योरली, अदरवाइज ऑफ कोर्स यू हैव लॉस्ट द बेनिफिट राइट देयर. उसके बाद कीज को जो है अपडेट भी करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है, पुरानी कीज को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है. जहां कीज का बैकअप स्टोर्ड है, बैकअप की क्यों जरूरत है ये हम आज देखेंगे. जहां पे भी कीज स्टोर्ड हैं उधर आपको एक मैकेनिज्म ऐसा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो कीज जो हैं लीक आउट ना हो, उनको सिक्योरली रखा जाए. एंड फॉर दिस देयर आर डिफरेंट वेज एंड मैकेनिज्म्स हाउ कीज कैन बी स्टोर्ड सिक्योरली. सो की मैनेजमेंट कैन बी हैंडल्ड थ्रू मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसेसेस. द कीज आर स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन अ की इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ यूजर, it does not just hang out on the desktop. It needs a secure place within the file system to be stored and used in a controlled method. The key, the algorithm that will use the key, configurations and parameters are stored in a module that also needs to be protected. तो जब भी हम कीज को यूज कर रहे हैं और हो सकता है किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, अव्वल तो ये है कि की डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जहाँ पे भी जनरेट होती हैं उसके डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले भी और बाद में भी उसको किसी सिक्योर जगह पे रखने की ज़रूरत है. प्रोग्राम के अंदर जो आपका क्रिप्टो सिस्टम है उसके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि की को एक ऐसे सिक्योर एरिया में रखा जाए विच इज़ इनक्रिप्टेड एंड nobody can just come in and take out the key. It should obviously not be in plain text. इसके अलावा की के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन जो एसोसिएटेड है उसकी कन्फिगरेशन और other details related to the key, how the key is stored, where it is stored, and such details also need to be kept secret and need to be kept secure within the operating system. So if an attacker is able to obtain these components, he could masquerade as another user and decrypt, read, and re-encrypt messages not intended for him. Historically, physical cryptographic keys were kept in secured boxes and delivered by escorted couriers. The keys could be distributed to a main server, and then the local administration would distribute them, or the courier would visit each computer individually. तो कीज़ को स्टोर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस है उसको HSM कहते हैं, होस्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल. So the host security module is actually a hardware which can fit in as either a card on your server or it can attach
to a computer direct, from as an external device. और वो जो HSM है, the host security module, उसके अंदर बाकायदा जो है, it's physically secure and the information which is kept within that HSM is encrypted. Now there were different ways के keys को जब पहुंचाना होता था एक दूसरे तरीके से दूसरे तरीके, तो in the past there were couriers used and they would use some kind of a device ताकि मेन फ्रेम के ऊपर वो कीज पहुंचा दी जाती थी एंड देन जो उनके साथ कंप्यूटर्स अटैच होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी. सो सम इम्प्लीमेंटेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड अ मास्टर की टू अ साइट एंड देन दैट की वाज यूज्ड टू जनरेट unique secret keys to be used by individuals at that location. Today, most key distributions are handled by a protocol through automated means and not manually by an individual. A company must evaluate the overhead of key management, the required security level, and the cost-benefit issues to decide how it will conduct key management, but overall, automation provides a more accurate and secure approach. So again, कीज़ को डिफरेंट तरीके से सिक्योरली पहुंचाया जाता था. कीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले ज़्यादा कुरियर्स और सिक्योर बॉक्सेस, जैसा कि मैंने आपको बताया एक HSM जो बॉक्स है, इट वाज यूज्ड कि फिजिकली एक कुरियर जो है वो जाता था और उसको एस्कॉर्ट करके कोई उसके साथ जाता था और कीज़ जो हैं वो फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम के ऊपर रख दी जाती थी एंड देन लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी थ्रू ओवर द नेटवर्क. या जो है एक फॉर एग्जांपल रीजनल ऑफिस में एक मास्टर की जो है वो पहुंचा जाती थी. इट वाज सप्लाइड इन द रीजनल ऑफिस एंड देन फॉर द एंटायर रीजन जो उसके सब ऑफिसेज थे उनके लिए दोज कीज कुड बी जनरेटेड फ्रॉम दैट मास्टर की. तो सब कीज जो हैं वो जनरेट कर दी जाती थी. लेकिन आज जो है हम ऑटोमेटेड मीन्स को यूज़ करते हैं. जहाँ पे भी मैनुअल इंटरवेंशन आती है, some human being is involved in the process, there can be some loophole. There can be some area where the security is compromised. So now, in this advanced age, most of the key distribution is done through protocols or through other means. It's done through systems. It's done in an automated manner. So when using the Kerberos protocol, a key distribution center, KDC, is used to store, distribute, and maintain cryptographic session and secret keys. This method provides an automated method of key distribution. The computer that wants to access a service on another computer requests access via the key distribution center. The KDC then generates a session key to be used between the requesting computer and the computer providing the requested resource or service. तो एक जो मैकेनिज्म है ऑटोमेटेड वो Kerberos का प्रोटोकॉल है. और Kerberos जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है KDC, दैट इज अ सर्वर. और अगर इफ अ यूजर फॉर एग्जांपल अहमद वांट्स टू एक्सेस अ सर्वर, इट कुड बी द डेटाबेस सर्वर, if he wants to, or it could be an application server, if he wants to establish a connection to that application server, सबसे पहले वो KDC जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट जाती है, उसको एक टिकट मिलता है और बाकायदा एक प्रोटोकॉल है पूरा, और फिर उसको सेशन की जो है वो सप्लाई होती है एंड थ्रू दैट सेशन की अहमद इज एबल टू कनेक्ट सिक्योरली टू द एप्लीकेशन सर्वर. इसमें बाकायदा बहुत सारी डिटेल्स हैं. ये डिटेल्स हम लेटर ऑन इन द कोर्स जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स उसको पढ़ेंगे. द ऑटोमेशन ऑफ दिस प्रोसेस reduces the possible errors that can happen through a manual process. But if the ticket granting service, the TGS portion of the KDC gets compromised in any way, then all the computers and their services are affected and possibly compromised. In some instances, keys are still managed through manual means. तो यहाँ पे भी important ये है कि KDC जो है, Kerberos का जो प्रोटोकॉल है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है, उसके अंदर एक टिकट जनरेटिंग सर्विस TGS है. Now obviously all the elements within the system, for example the Kerberos जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर एक KDC है, एक टिकट जनरेटिंग एक TGS है, वो जो functions हैं, if those are not maintained properly, then what will happen? Then obviously the security will be compromised.
इसलिए समटाइम्स हम फाइंड करते हैं कि कुछ चीज़ें मैन्युअली परफॉर्म होती हैं in the real world and some things are automated. So it can always be a combination and a hybrid approach. So unfortunately, although many companies use cryptographic keys, they rarely, if ever, change them, either because of the hassle of key management or because the network administrator is already overtaxed with other tasks or does not realize the task actually needs to take place. The frequency of use of a cryptographic key has a direct correlation to how often the key should be changed. The more a key is used, the more likely it is to be captured and compromised. If a key is used infrequently, then this risk drops dramatically. तो सबसे पहली बात हम अब दोबारा ये देख रहे हैं कि की मैनेजमेंट में हम ये कह रहे हैं कि पूरी जो लाइफ साइकिल है की उसको जनरेट करना, जहाँ जनरेट होती है वहाँ पे स्टोर भी होनी है, सिक्योरली सेव होनी चाहिए, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करना है, जब ट्रांसमिट होती है की तो सिक्योरली ट्रांसमिट होनी चाहिए, जहाँ पे वो की स्टोर होती है एट द डेस्टिनेशन साइड इट ऑल्सो नीड्स टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली. उसके बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा क्रिप्टो सिस्टम है, उसके अंदर मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि की जो है सिक्योरली वहाँ पे एक रिपोजिटरी में पड़ी रहे और उसकी प्रोटोकॉल और उसकी कन्फिगरेशन और उसकी एल्गोरिदम जो है वो भी सिक्योरली वहाँ पे दे आर ऑल्सो लाइंग इन द सिस्टम और इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कीज को चेंज करने की जरूरत क्यों है? की मैनेजमेंट की एक लाइफ साइकिल तो है, लेकिन की को चेंज क्यों करना चाहिए? की को इसलिए चेंज करना चाहिए कि अगर आप अपने इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे और आपको सारी की सारी सिक्योरिटी सर्विसेज मिलती रहें, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट एन अटैकर इज वर्किंग ऑन योर कीज और वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू, स्निफिंग के थ्रू, ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू, इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस के थ्रू कोशिश कर रहा है और वॉच कर रहा है कि आपके मैसेजेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या जा रहे हैं. तो जब तक अटैकर वुड बी एबल टू मेक सम हेडवे, आप की जो है वो दोबारा चेंज कर देते. तो की जो चेंज करना है इट डिपेंड्स कि आप कम्युनिकेशन किस फ्रीक्वेंसी के साथ, हाउ ऑफन आर यू डूइंग दिस कम्युनिकेशन एंड हाउ ऑफन आर यू यूजिंग दैट की इन दैट कम्युनिकेशन. जब भी आप एक की को एक्सपोज कर रहे हैं, जितनी दफ़ा भी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उस की को उतना फ्रीक्वेंटली ही रिप्लेस करके न्यू की जो है उसको यूज़ करें. अगर एक पर्टिकुलर जो की है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, इट कुड बी अ सेशन की एंड यू कुड हैव अ नंबर ऑफ कीज ऑब्वियसली. अगर एक ऐसी की है जिसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर उसको चेंज करना भी जो है यू डोंट नीड टू डू इट सो फ्रीक्वेंटली. लेकिन अगर एक और सेट ऑफ कीज़ है जिसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं उसमें इंक्रिप्शन की या डिफरेंट सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप उस की को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू चेंज दैट की विद द सेम फ्रीक्वेंसी. उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए कि आप उस की को शेयर भी करें. और जैसे कि हमने कहा कि sometimes we are using systems, sometimes there are the facilities are available to us through automated means, लेकिन कोई ऐसा एस्पेक्ट होता है जिससे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं एंटायर सेटअप को. उसकी एग्जांपल ये है कि आपकी प्राइवेट की जो है, अगर आप उसको अपने कंप्यूटर के एक ऊपर छोड़ जाएं या आप अपनी डायरी में कहीं लिख लें एंड somebody is able to get hold of it, or if you leave it in a place where an attacker can easily get hold of it. So what you need to do is you need to take care of the entire environment और आपको make sure करना पड़ता है कि कहीं पे भी लूप होल आप ना छोड़ें. और ये एक ऐसा एरिया है जो कि जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं समटाइम्स दे आर वेरी बिजी, दे डू नॉट रियलाइज कि की जो है वो चेंज होने वाली है. एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स आर यूजुअली ऑलवेज वेरी बिजी. वो ऑपरेशंस में जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें मेक श्योर करना चाहिए कि दिस इज़ ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर एंड अ प्रोसेस कि जहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल हो रही है द कीज शुड बी चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो की इस्तेमाल हो रही है. नाउ एज एन एग्जाम्पल, a small departmental store
might only change its cryptography keys every month, whereas an information warfare military unit might change them every day or every week. The important thing is to change the keys using a secure method. Key management is the most challenging part of cryptography and also the most crucial. It is one thing to develop a very complicated and complex algorithm and key method, but if the keys are not securely stored and transmitted, it does not really matter how strong the algorithm is. तो ये तो एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है. एक मिलिट्री यूनिट जो है अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू चेंज द की more frequently on a daily or weekly basis. In another application, it could be a bank, it could be a small departmental store. That frequency will depend कि वो कितनी security जो है वो organization चाह रही है और वो application क्या है. Obviously, a bank which is using a secure application, and in that application, the sensitive information of all of its customers are stored, for example, credit card information. If those keys which are used to encrypt that data are also not changed frequently, and the process is not secure of how those keys will be changed, how they will be stored, and all of the related details, then there is also a substantial risk over there. तो ये depend करता है कि कौन सी organization है, क्या वो application है, और कितने फ्रीक्वेंटली उस की को एक्सपोज किया जा रहा है इन द ट्रांजैक्शंस और इन द यूजेज. सो कीज शुड नॉट बी इन क्लियर टेक्स्ट आउटसाइड द क्रिप्टोग्राफी डिवाइस. Many cryptography algorithms are known publicly, which puts more stress on protecting the secrecy of the key. If attackers know how the actual algorithm works, in many cases, all they need to figure out is the key to compromise the system. This is why keys should not be available in clear text. The key is what brings secrecy to encryption. तो of course, जैसे कि हमें पता है कि हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि एल्गोरिदम जो है उसको सीक्रेट ना रखा जाए. The algorithm should be open. उसके जो स्टेप्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, जो राउंड्स हैं, वो ओपनली नोन होते हैं. जो सीक्रेसी आती है एल्गोरिथम के अंदर वो की के थ्रू आती है. दिस प्लेसेस मोर एम्फोसिस, मोर स्ट्रेस, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द की सिक्योर, बिकॉज एल्गोरिथम का तो पहले ही पता है कि वो किस तरह काम करती है. लिहाजा जो बहुत सीक्रेट पार्ट है वो की है. इसलिए इट इज वेरी एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कीज को प्रॉपरली सिक्योरली मैनेज किया जाए. दीज स्टेप्स एंड ऑल ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस शुड बी ऑटोमेटेड and hidden from the user. These processes should be integrated into software or the operating system. It only adds complexity and opens the doors for more errors when processes are done manually and depend upon end users to perform certain functions. तो जहां पे भी यूजर एक इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था कि जब हम थ्रेट्स को पढ़ रहे थे, थ्रेट लैंडस्केप को जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जो इंटरनल एम्प्लॉई है, ही हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट. एंड वी हैव सीन केसेस जहां पे एप्लीकेशंस आर अवेलेबल which are encrypted and which need to be kept secure, but the key is known by the administrator. So that key can be easily compromised. If you happen to fire that administrator, तो उसको key तो पता है. And by the way, he may be the only person who knows the key in the organization. अगर वो key को ले जाएगा तो फिर क्या होगा? Keys are at risk of being lost, destroyed, or corrupted. Backup copies should be available and easily accessible when required. If data are encrypted and then the user accidentally loses the necessary key to decrypt it, this information would be lost forever if there were not a backup key to save the day. The application being used for cryptography may have key recovery options, or it may require copies of the keys to be kept in a secure place. तो ये आप सोचिए, एंक्रिप्शन तो हम पढ़ रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी तो हम पढ़ रहे हैं, की के साथ सपोज कि आप सिमेट्रिक की के साथ आप एक इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर देते हैं. वंडरफुल, यू हैव एनक्रिप्टेड द इंफॉर्मेशन,
लेकिन की को घुमा दिया जाता है, उसी की से आपने डिक्रिप्ट करना है इंफॉर्मेशन को. नाउ व्हाट विल यू डू? सो बैकअप कॉपीज को रखने की जरूरत होती है, और समटाइम्स एप्लीकेशन के अंदर इन इटसेल्फ ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको रिकवरी ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, या इट मे आस्क यू टू स्टोर a backup copy in an alternate location. And different scenarios highlight the need for key recovery or backup copies of keys. For example, if Bob has possession of all the critical bid calculations, stock value information, and corporate trend analysis needed for tomorrow's senior executive presentation, and Bob has an unfortunate confrontation with a bus, यानी कि उसका accident हो जाता है, someone is going to need to access this data after the funeral. So as I mentioned, organizations के अंदर कई दफ़ा ऐसे होता है कि one individual has all the secret data, and that secret data की जो key है वो भी उसी के पास होती है. That is the only individual who has that information. Bob का supposing that Bob runs into an accident and this is a fatal accident और वो survive नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन जो 2 दिन के बाद है उसमें कैसे प्रेजेंट होगी? तो इसलिए बैकअप की जो है उसका एक मैकेनिज्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली, इफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट नो दैट रनिंग अ लार्ज मैग्नेट over the floppy disk that holds his private key was not a good idea, he would want his key replaced immediately instead of listening to a lecture about electromagnetic fields and how they rewrite sectors on media. Of course, having more than one key increases the chances of disclosure. So a company needs to decide whether it wants to have key backups, and if so, what precautions to put into place to protect them properly. तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे डिसाइड करना पड़ता है कि हम कीज की बैकअप्स को किस तरीके से मेंटेन करेंगे और किस हद तक कीज की बैकअप्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. बिकॉज अगेन द बैकअप कॉपी ऑफ अ की ऑल्सो नीड्स टू बी सिक्योर्ड एंड वी नीड टू मेक श्योर कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जितनी आप बैकअप कॉपीज रखेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपकी एक्चुअल सीक्रेट कम्युनिकेशन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए. सो वी हैव टू रीच अ बैलेंस between taking backups, making sure the procedures and process and the systems and the technology are there ताकि backups जो हैं वो भी securely store हों. जब उनको recover करने की ज़रूरत हो, जब उनको निकालने की ज़रूरत हो, तो वो भी controlled होना चाहिए. और इसके अलावा ये बात है कि आप ऑन वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, हमारे पास ये है कि एक ही की है, वो एक इंडिविजुअल के पास है, अगर वो की गुम गई तो दैट्स इट. एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वी हैव सेवरल बैकअप्स ऑफ द कीज. सो वी नीड टू रीच सम मिडिल ग्राउंड, और आपको बैकअप्स भी बनाने हैं और उनको सिक्योरली स्टोर करके मेंटेन भी करना है. So a company can choose to have multi-party control for emergency key recovery. This means that if a key must be recovered, more than one person is needed for this process. The key recovery process could require 2 or more other individuals to present their private keys or authentication information. These individuals should not all be members of the IT department. There should be a member from management, an individual from security, and one individual from the IT department. All of these requirements reduce the potential for abuse and would require collusion for fraudulent activities to take place. तो systems और mechanisms में जहाँ पे backup key को recover करने के लिए या जब backup key की ज़रूरत पड़े, आपको स्टोर में से निकालने की ज़रूरत पड़े, तो उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग जो हैं, एक मैनेजमेंट से इंडिविजुअल हो, एक आईटी डिपार्टमेंट से हो, एक आईटी सिक्योरिटी से हो, फॉर एग्जांपल, दे हैव टू गो इनटू अ सिस्टम एंड फॉर एग्जांपल एंटर देयर प्राइवेट की. तो इस तरीके से आप जो है उसको स्प्लिट कर देते हैं, एंड व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज दैट यू आर स्प्लिटिंग अप एंड मेकिंग श्योर कि डिफरेंट पीपल की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होगी, दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट कि लोग जो हैं कंबाइन होके एक इवल मोटिव के लिए
जो है की को रिकवर करेंगे. सो व्हाट आर द रूल्स फॉर कीज एंड की मैनेजमेंट? Key management is critical for proper protection. The following are responsibilities that fall under the key management umbrella. Number one, the key length should be long enough to provide the necessary level of protection. Number two, keys should be stored and transmitted by secure means. Number three, keys should be extremely random and the algorithm should use the full spectrum of the key space. Number four, the key's lifetime should correspond with the sensitivity of the data it is protecting. Less secure data may allow for a longer key lifetime, whereas more sensitive data might require a shorter key lifetime. Number five, the more the key is used, the shorter its lifetime should be. Number six, keys should be backed up or escrowed in case of emergencies. Number seven, keys should be properly destroyed when their lifetime comes to an end. जब हम algorithms को पढ़ रहे थे, symmetric algorithms in particular, तो हमने ये देखा था कि एक चीज होती है key space. Key space depends upon key length. And there are several principles that must be used to make sure that we use the entire key space. Keys जो हैं जब वो generate होती हैं तो key space is all the possible values of those keys. And this depends on the number of bits. हमने ये बात की थी कि number of bits अगर minimum 100 हो तो key length should be about 100 or more and then 100 bits. And of course the key space जो है उसकी सारे का सारा spectrum जो है वो use होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि key space में से एक particular जो zone है या domain है या पार्ट है की स्पेस में से, उसमें से सारी कीज की सारी कीज जनरेट हो रही हैं. ऑब्वियसली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रैंडमनेस लाएं कीज के अंदर. और इसके अलावा जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं फॉर सिक्योर की हैंडलिंग. उसके अंदर बहुत सारी हैं, जैसे कि हमने अभी रिव्यू किया कि कीज को मेक श्योर करना चाहिए कि उसकी की लेंथ जो है वो अप्रोप्रिएट है. उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो की स्पेस है उसमें से सारे का सारा की स्पेस यूज होना चाहिए. द की शुड बी एज रैंडम एज पॉसिबल. इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि जब वो की स्टोर और ट्रांसमिट होती है तो सिक्योरली स्टोर हो और सिक्योरली की जो है वो ट्रांसमिट हो. जितनी सिक्योर एप्लीकेशन है, जिस नौइयत की वो ऑर्गेनाइजेशन है, उतना ही ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उन मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करे ताकि कीज़ सिक्योरली स्टोर हों, कीज़ जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज हों. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, एक मिलिट्री का यूनिट वर्सेस अ स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर, उनके अंदर बहुत फ़र्क होगा. द वे दैट दे मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कीज़ फॉर एग्जांपल एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द कीज़ आर चेंज्ड. जब वो की ज़रूरत नहीं होती तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. और इसके अलावा जितना ज़्यादा आप उस की को एक्सपोज कर रहे हैं इन द कम्युनिकेशन ओवर एन इनसिक्योर चैनल, आपको ज़रूरत है कि आप उतना ही जो है उस की को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, ताकि अगर अटैकर जो है वो परस्यू कर रहा है आपको, वो पैटर्न्स देख रहा है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, बाय द टाइम दैट अटैकर गेट्स क्लोज, आपने जो सेशन की है फॉर एग्जांपल वो इंटायरली आपने चेंज कर दी है. तो जैसा कि हम देख रहे हैं की मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ऑटोमेशन इसके अंदर लाई जाए उतना ही वो अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन wherever it is avoided it is better. Wherever a human is involved there is more risk. कीज की जो है पूरे का पूरा एक लाइफ साइकिल है. कीज क्रिएट भी होती हैं, कीज ट्रांसमिट भी होती हैं, कीज को स्टोर भी करना होता है. कीज जो जब क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में इंप्लीमेंट होती हैं तो वहां पे भी तो सिक्योर होना जरूरी है. व्हाट इफ समबडी गेट्स एक्सेस टू योर कंप्यूटर? इसका क्या ये मतलब होना चाहिए कि क्लियर टेक्स्ट में आपकी की पड़ी हुई है आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल में एंड एनीबडी कैन जस्ट पिक इट अप? सो दिस की इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया बिकॉज एल्गोरिथम्स जो हैं उनका भी तो एक ओपन एक मैकेनिज्म है. मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स जो आज इस्तेमाल हो रही हैं वो एल्गोरिथम ओपनली नोन है.
और वो जो की है दैट इज द सीक्रेट पार्ट. एंड मेनी टाइम्स दीज कीज are part of the crypto system, and they should be part of the crypto system rather than a human is entering the key. It should be generated in a manner which is secure. It should be stored in a manner which is secure. It should be used in a manner which is secure as well. So that was the topic for today. It was all about keys. और इसके अंदर हमने देखा कि एक बाकायदा की डिस्ट्रीब्यूशन और हैंडलिंग का जो एक मैकेनिज्म है करबरोस, और उसके अंदर एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो यूज होता है. और वो क्या करता है कि अगर एक यूजर इस्टेब्लिश करना चाहता है एक सेशन विद अ सर्वर, इफ अहमद वांट्स टू कनेक्ट टू ए सर्वर, फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन सर्वर, तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसको टोकन्स और सेशन की उन दोनों पार्टीज को इशू करता है, एंड देन दैट कम्युनिकेशन इज एनक्रिप्टेड विद दैट स्पेशल सेशन की विच इज जस्ट फॉर दैट सेशन, जो कि उस इंस्टेंस के ऊपर यूज हो रहा है. इस तरीके से नई कीज जो हैं वो जनरेट होती हैं, पुराने सेशन कीज जो हैं वो एक्सपायर कर जाती हैं, एंड द KDC जो है एक टिकट जनरेटिंग सर्विस, TGS जो है एक सर्विस यूज करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स इन विच वी हैंडल की क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनेबलमेंट. So that was the lecture for today, all about key management. इसके कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं की मैनेजमेंट के, जिस तरीके से करबरोस है, उसको हम ज़्यादा डिटेल से फ्यूचर में भी देखेंगे. I hope that you enjoyed the lecture for today. This was also a management type of a subject, जिसके अंदर बहुत सारे do's and don'ts हैं कि कीज़ को मैनेज करने का तरीका क्या है. This is very important, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत दफ़ा ये ओवरलुक हो जाता है. द की जो मैनेजमेंट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके जो चेंजेस करते हैं कीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स ने करने होते हैं, एंड दिस इज़ ओवरलुक्ड. बहुत अरसा कीज़ पड़ी रहती हैं, वही वाली कीज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं, सालों साल वही वाली कीज़ चल रही होती हैं, एंड नोबडी वुड हैव चेंज द कीज़. द मोर द की मैनेजमेंट इज़ ऑटोमेटेड, द बेटर. द लेस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट देयर इज़, दैट इज़ बेटर. I would like to thank you for attending the lecture for today, and I'm looking forward to see you next time. और अब हम कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, जिसके अंदर लिंक इंक्रिप्शन जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल सी कि लिंक इंक्रिप्शन जो है किस तरीके से काम करती है. एंड वी विल ऑल्सो लुक एट सम ईमेल स्टैंडर्ड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल MIME and SMIME. Again, thank you very much for attending today, and I'm looking forward to see you again next time. Allah Hafiz.